जो हुई है? जी हमारे डीजीपी सर मानजो गौरव यादव सर ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਇਨਟੂ ਬੀਇੰਗ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5.47 kg ਹੈਰੋਇਨ 40 cartridges of 9 mm 1.07 lakh rupees drugs 3 motorcycles ਤੇ ਇੱਕ 4 wheeler ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ some amount of gold and silver has also been recovered ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ हैं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਫਰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 23 ਵਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਔਨ 23/5/24 और अंडर सेक्शंस 21, 23, 29 of Arms NDPS Act and section 25 of Arms Act और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ हैं ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ them are students ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਡ द विलेज पीरे के उताड़ जिथों ये बंदे अरेस्ट हुए ते रिकवरी हुई इस तो अलावा इन्होंने तरन तारण विच ते राजस्थान विखे भी ये पहले कंसाइनमेंट्स मंगवाए हैं ये जड़ा सारा कंसाइनमेंट है और 5.47 kg हेरोइन दिस इज अ प्योर ग्रेड हेरोइन एंड इट हैज बीन डिलीवर्ड वाया ड्रोन्स फ्रॉम पाकिस्तान जड़े ये बंदे अरेस्ट हुए हैं दे वर इन डायरेक्ट लिंक्स with the Pakistan based smugglers and we are establishing the links further एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जड़ी हैगी लिंकेजेस वो आप स्टैबलिश करते पे हैं ये एक होर चीज़ मैं ये मैंशन करना चाहूँगी कि जिमें ये यंगस्टर्स सीगे सारे एंड सारे ही स्टडी करते सी अ फ्यू ऑफ देम वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉशन फॉर द पेरेंट्स एज वेल कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि वो किस संगत च चलते हैंगे फिरते हैंगे तो उन्होंने कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं करता पाया So then these people they got together, they came in contact with one of the smugglers ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੁਰੀਅਰਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ और सिंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज कम इनटू बीइंग 16/3/24 तो बाद फाजिलका पुलिस ने हले तक अ टोटल ऑफ 22 kg हेरोइन 22.5 kg हेरोइन हैज ऑलरेडी बीन रिकवर्ड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਸੀਜ਼ਰ ਵੈਲਿਊ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ more than 56 crores so we have already been doing good work and I would also like to congratulate our BSF counterparts ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਫੇਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ देखिए ये 5 बंदे सी ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स who came together and then they got in touch with the person कमलदीप सिंह जिते पहले पुराने 2 पर्चे ने सदर कपूरथला और वो जेल च भी रहा हुआ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ हुआ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਇਆ 2 smugglers who are based out of India ਔਰ वो ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ WhatsApp ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ that is sensitive information but yes we have established a forward linkage ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। मैम जो स्टूडेंट है ये सिर्फ कोरियर के तौर पे होती है या कोई एक तरह के एक्सक्यूज पकड़े जाते हैं, उन पर कई मुकदमे दर्ज होते हैं। ये आम धारणा है कि मुकदमे दर्ज होते रहते हैं और वो बाहर आते रहते हैं, फिर उसी काम में वो लिप्त हो जाते हैं। तो कहाँ ये कमी रह रही है? पुलिसिंग में कमी रह रही है या कहीं कानून में कमी रह रही है कि वही लोग 10-10 मुकदमे दर्ज? पिछली बार जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उस पर 10 मुकदमे दर्ज थे, सेम एक्ट में थे, लेकिन फिर भी उनकी जमानत हो जाती है। ये जो 7 बंदे हमने पकड़े हैं इनमें से 6 जो हैं वो फर्स्ट टाइमर्स हैं। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि वी आर द फर्स्ट वंस टू कैच देम। ये पिछले 3-4 महीने से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया एंड देन विद दिस कंसाइनमेंट फाजिल्का पुलिस की ये एक बड़ी अचीवमेंट है अलॉन्ग विद द बीएसएफ कि हमने इनको भी पकड़ा। दूसरी चीज जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स के लिए ये कॉशनरी एक एग्जाम्पल भी है कि हम अपने बच्चों की कंपनी पर थोड़ा ध्यान रखें कि कहीं कोई वो इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे हैं, स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट जो है ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम जो सी ये खेप बरामद हुई है ये कल आई है या इससे पहले की है या इन्होंने रखी हुई थी कहीं? जी एज आई अगेन सेड कि ये जो पूरा कंसाइनमेंट है ये हमने रिकवर किया अलॉन्ग विद ऑल द एक्यूज्ड हु वर इन्वॉल्व्ड इन इट, और ये ड्रोन डिलीवरीज हैं, ड्रोन के थ्रू ये मंगाई गई है। मैम जो स्टूडेंट है वो सिर्फ कुरियर का काम करते थे या उनको सप्लाई करने के लिए भी भेजते थे? देखिए दे आर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल दिस ड्रग मॉड्यूल। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग बट यस इसमें कुरियर, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज तीनों हमने जो है एक किसी भी एक मॉड्यूल के ये 3 पार्ट्स होते हैं तो हमने एंड टू एंड एक मॉड्यूल बस्ट किया है। मैम जो से ये स्टूडेंट है कौन सी क्लास में है, किस सब्जेक्ट में ये थे? है जी देखिए आफ्टर 12th दे वर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस थिंग्स। इसमें से 2 बंदे जो हैं वो आर्मी के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ आईटीआई जड़े है गए वो करते पे सी। जड़ा एक बंदा है कमलदीप सिंह, ही हैड ऑलरेडी सर्व्ड जेल टाइम और होते 2 पुराने पर्चे से। ये मास्टरमाइंड है ये कमलदीप? देखिए मास्टरमाइंड जैसी बात कुछ होती नहीं है, एक गैंग होता है, गैंग में हर किसी का एक रोल होता है। सो वो रोल हम अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं एंड आगे भी इसको लेके जाएंगे। आगे इसमें जो भी आगे हमारे पास रिकवरीज होंगी या इंफॉर्मेशन होगी वी विल लेट यू नो। इट इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी स्टेज जिसमें हमने इतनी बड़ी सक्सेस जो है हमने अचीव। मैम ये गैंग बना कैसे? सरहदी गांव के रहने वाले हैं हाँ लड़के? जी ये सरहदी गांव के रहने वाले हैं। इसमें मेजोरिटी जड़े हैंगे 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 और गैंग जिवें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ये सारे स्टूडेंट्स सी। ये एक जिवें खेडन जांदे सी या प्रिपरेशन करन जांदे सी ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ही ਇਹਨਾਂ ने ये प्लानिंग करनी स्टार्ट की थी। बीएसएफ से एक सवाल है, काफी टाइम से ये मुझे लगा शायद आप रखते हैं सर, देखने में आया है कि रिकवरी बढ़ती जा रही है आगे से, तो ये रिकवरी बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, आपको इसमें काफी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ड्रोन से हो रही है, तो किस तरह का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि इसमें ये कमी आए और वहीं पर ये पकड़े जाएं सर? ऐसा है जो बीएसएफ जो सरहद पे तैनात है, राउंड द क्लॉक 24/7 तैनात है और सभी का एक ही मिशन है कि पंजाब को जो ड्रग फ्री करना है। हालांकि जो चैलेंजेस है, जो ड्रोन एक नया चैलेंज है, रिसेंट पास जो इंसिडेंट होने शुरू हुए, हमने इसको काउंटर करने के लिए अभी काफ़ी इसमें हम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश जारी है। एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह हम लगाने की हमारी पहल जारी है। जल्दी एंटी ड्रोन सिस्टम इस एरिया में होगा तो इस पर जरूर नकेल कसा जाएगा। बाकी हमारे जो महानिरीक्षक महोदय, जो हमारे उप महानिरीक्षक महोदय और समादेष्टा महोदय 160वीं वाहिनी का हमेशा से प्रयास है कि पंजाब पुलिस के साथ मिल करके जो ये नारकोटिक्स और ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है पंजाब में, इसको लगाम लगाया जाए और हम इस पर बहुत फैक्टर सफल हैं। देखिए इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ड्रोन्स के अगेंस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट ये है कि जब से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हुआ है उसके बाद से 5 या 6 ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए हैं इंक्लूडिंग द क्वाड्रोकॉप्टर। और उसमें अच्छी चीज ये है कि ड्रोन चाहे कहीं पे भी इंटरसेप्ट हो उसका एक प्रॉपर बैकवर्ड लिंकेज हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। प्रीवियस एक कंसाइनमेंट था, एक मेजर कंसाइनमेंट था जिसमें हमने उसके बाद बंदे भी अरेस्ट किए, 12 लाख ड्रग मनी भी रिकवर हुआ और सारा कुछ एक बिल्कुल ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन में हम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे जारी रखें। थैंक यू। शुक्रिया।
ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ नहीं ठीक है मैम। ठीक है ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਵਜਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ